Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme Multi-factor theory of intelligence with special reference to its types. जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया attributes of multi-factor theory of intelligence. Now in today's lecture, we will focus on types of intelligence. The multi-factor theory of intelligence, it is propounded or designed by one of the eminent American-born psychologist, namely E.L. Thorndike. Throndike has classified intelligence into three different types, such as abstract intelligence, concrete intelligence, by and large social intelligence. Now dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, intelligence is the cognitive competency or mental faculty possessed by an individual. Without the cognitive competency or mental faculty, one cannot perform the tasks. कोई भी टास्क हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं विदाउट द इंटेलिजेंस, यानी कि कोई भी काम जो हम करते हैं वी परफॉर्म ऑल द टास्क्स ऑन द बेस ऑफ मेंटल एनर्जी. तो उस मेंटल एनर्जी को कहते हैं इंटेलिजेंस. कीपिंग इन व्यू द ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है और हर एक इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट टास्क्स में यूज होती है. वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन to perform the one specific tasks, और दूसरी type of intelligence will help us to perform other types of tasks. There is no involvement of single ability to perform various types of tasks. अलग अलग टास्क को अलग अलग किस्म की एबिलिटी लगती है. जब हम थॉर्नडाइक के प्रिज्म से देखते हैं, थॉर्नडाइक ने तीन इंटेलिजेंसेस की बात की है. We'll see how these three different types of intelligence help us to perform different types of tasks. Number one, abstract intelligence. The ability to deal with words, numbers, letters, signs, and symbols is known as abstract intelligence, and it is usually possessed by professionals such as doctors, teachers, lawyers, and philosophers. Abstract intelligence वो intelligence है which deals with numbers, words, signs and symbols. क्योंकि signs and symbols, words और numbers ये abstract है. Abstract means which are intangible. Dear students, intangible in sense which we cannot see, which we cannot touch, यानी कि वो चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं पाते हैं, जिनका शेप साइज नहीं होता है, उन चीजों को हम कहते हैं abstract. So with the help of abstract thinking, we can deal with the abstract things. Abstract things in the form of words, in the form of numbers, in the form of signs and symbols. जिन इंडिविजुअल्स के पास abstract thinking होती है वो abstract tasks परफॉर्म कर पाते हैं. And those who are lacking the abstract thinking, they cannot perform abstract tasks.
फॉर इंस्टेंस, अगर हम वर्ड लव, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, क्योंकि इटसेल्फ इनका कोई डेफिनिट शेप साइज नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये कॉन्सेप्ट्स है ये एग्जिस्ट होते हैं। जॉय को समझने के लिए, सैडनेस को समझने के लिए, या किसी भी इमोशन को समझने के लिए वन मस्ट possesses एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना को हम मैनिपुलेट या ऑपरेट नहीं कर सकते हैं विदाउट हैविंग द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दैट इज वाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है इट इज क्लोज टू द साइंटिफिक थिंकिंग एज वेल एज क्रिएटिव थिंकिंग। ऑन द बेस ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहा जाता है। क्योंकि इसलिए इसे हायर ऑर्डर कहा जाता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वी कैन परफॉर्म हायर ऑर्डर टास्क्स। जब भी हमें हायर ऑर्डर टास्क परफॉर्म करनी होती है तो उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक इंडिविजुअल के पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैथमेटिशियंस में या साइंटिस्ट्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉमनली फाउंड की जाती है। नाउ हाउ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज रिलेटेड टू द creativity. Creativity simply means assimilation of ideas in order to give new one. जो भी दुनिया में inventions and discoveries है, those are based on abstract thinking. I mean to say you creativity. एक scientist, namely Thomas Alva Edison, one of the famous scientists, because he has invented the electric bulb. When he was merely 8 years old, he started the experiments. छोटी उम्र में उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। Actually, Thomas Alva Edison possessed the creative potentials, या हम दूसरे मायने में कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेटेड थी, इसीलिए वो बचपन ही से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में दिलचस्पी रखता था। ही वॉज सॉल्विंग द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क्स। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क वो परफॉर्म कर पाता था, क्योंकि इनकी ब्रेन सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को फ्लूइड इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और यही फ्लूइड इंटेलिजेंस हेल्प अस टू ऑपरेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट। इनमें क्रिएटिव आइडियाज फ्लोट हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग जो है हु कैरी द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दे हैव मैक्सिमम चांसेस टू बिकम डॉक्टर्स, to become engineers, by and large philosophers, vis-a-vis the scientists. Thomas Alva Edison once tried to hatch the eggs. तो उसकी मदर ने उसे पूछा, What you are doing? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने वापस जवाब दिया, Mother, I am trying to hatch the eggs. Her mother replied back, You are not duck or hen, so you cannot hatch the eggs. ना तो आप मुर्गी हो ना बतख, तो आप अंडों को हेच नहीं कर सकते हो। थॉमस एल्वा एडिसन has given the beautiful answer, Mom, I am bigger than the hen or duck. When hen or duck can hatch the eggs, why not me? मैं हेच क्यों नहीं कर सकता हूं? So finally, Thomas Alva Edison has invented the hatching machine. Hatching machine is the contribution
contributed by the Thomas Alva Edison. Apart from it, electric bulb is the best invention of Thomas Alva Edison. Gramophone, this is also the invention of Thomas Alva Edison. ये inventions कैसे ये invent कर पाते हैं? Always keep it in the mind, on the base of creativity, on the base of fluid intelligence, या हम कह सकते हैं abstract thinking, जिसमें जितनी abstract thinking होती है उतने chances होते हैं inventions और discoveries की. इसीलिए वो लोग inventions और discoveries करते हैं जिनके पास abstract thinking होती है, वो abstract ideas को understand कर पाते हैं. Dear students, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं किस तरह से हमें ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना होता है. ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन द साइंस एंड सिंबल्स, और साइंस एंड सिंबल्स को समझने के लिए वी हैव टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. हर कोई साइन एंड सिंबल जो है ट्रैफिक के साथ कनेक्टेड, दैट गिव्स इट इट्स ओन सेपरेट मीनिंग. फ्लो चार्ट पे दिखाया गया भी है हाउ डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स infers the different meanings related to the traffic rules, like no bicycle, crosswalk, no lettering, no parking, children crossing, no walking, zigzag road, traffic light, no vehicle, right of the grounding, narrow road, sit off, minimum speed, horse crossing, aeroplane sign, no waiting, curved road. These are the various signs and symbols which describes the traffic system. अगर हमें ट्रैफिक सिस्टम फॉलो करना है तो हम डिफरेंट साइंस से, इमेजेस से, सिंबल्स से समझ पाते हैं कि पर्टिकुलर साइन क्या डिपिक्ट करती है. और हर एक साइन को समझने के लिए द इंडिविजुअल नीडेड द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. इसीलिए हमने इनिशिएशन में कहा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज दैट थिंकिंग विच डील्स विद द साइंस एंड सिंबल्स, नंबर्स एंड वर्ड्स. अगर हमें रिलीजन को समझना है, रिलीजन इज द सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एज वी नो, तो हर एक रिलीजन की अपनी अपनी साइन और सिंबल है. लाइक क्रिश्चियनिटी रिलीजन का अलग सिंबल है, शिंटोइज्म का अलग है, जैनिज्म का हैंड जैसे कि है, इसी तरीके से टोटिज्म की अलग साइन है, बुद्धिज्म का व्हील चक्र है, सिखिज्म की अलग साइन है, इस्लाम की मौसिक है, हिंदुइज्म का ओम है और बहाईज्म का सितार है. दीज आर द वेरियस साइंस विच describes the particular religion. हर एक साइन और सिंबल पर्टिकुलर रिलीजन को डिफाइन करता है. तो रिलीजन एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, इसको समझने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स. नंबर सेकंड, concrete or mechanical intelligence, the ability to understand and deal with things or material objects as in scientific instruments and skilled occupations. The majority of people with concrete intelligence are engineers, mechanics, architects, etc. Concrete intelligence को mechanical intelligence भी कहा जाता है. It is basically that ability in which an individual deals with the material objects. यानी कि ये वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, आई मीन टू से यू वो कॉग्निटिव पोटेंशियल है जो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को हाउ टू डील विद द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच आर इन टेंजिबल फॉर्म. टेंजिबल मीन्स विच इज हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, जिसका एक डायमेंशन होता है, तो उसको हम कहते हैं टेंजेबल. और टेंजेबल का अपोजिट है इंटेंजेबल.
जिसका शेप साइज नहीं होता है, वेट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, which is, I mean to say, you abstract. While as concrete means which is having physical appearance, या हम नटशल में कह सकते हैं जिसका शेप साइज होता है। और कंक्रीट इंटेलिजेंस या हम कह सकते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ये वो इंटेलिजेंस है जो डील करती है किसके साथ? कंक्रीट फिनोमेना के साथ। और जो ये इंटेलिजेंस है ये कॉमनली फाउंड की जाती है इन इंजीनियर्स, मैकेनिक्स या आर्किटेक्ट्स, इनमें ये डोमिनेंट होती है। जैसे कि एक इंजीनियर जो होता है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। एक इंजीनियर 100 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाता है और वो बिल्डिंग जो है वो एरर फ्री रहती है। हाउ? ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस उसके पास है, दैट इंटेलिजेंस इज नोन एज कंक्रीटिक इंटेलिजेंस। जिस इंडिविजुअल के पास कंक्रीटिक इंटेलिजेंस नहीं होती है उसे चांसेस कम होते हैं इंजीनियर बनने के, आर्किटेक्ट बनने के, मैकेनिक बनने के। वो बड़े ब्रिज को नहीं बना सकता है जिसमें 100% गारंटी और सेफ्टी होगी, वो बिल्डिंग को नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो कंक्रीटिक इंटेलिजेंस है इट इज फाउंड इन इंजीनियर्स। इसी तरह से मैकेनिक डील्स विद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक में ये इंटेलिजेंस स्ट्रांग पाई जाती है। ऑन द बेस ऑफ मैकेनिकल इंटेलिजेंस या हम कह सकते हैं कंक्रीटिक इंटेलिजेंस, उसे पता चलता है कि गाड़ी में डिफेक्ट क्या है और कहाँ पर है और किस तरीके से इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया जाता है। घर में फैन खराब हो जाएगा, रेडियो खराब हो जाएगा, टेलीविज़न खराब हो जाएगा और वो इंडिविजुअल्स इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ठीक कर पाते हैं जिनके पास मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है, जिनके पास कंक्रीटिक इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं सीखी है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ डील कर पाता है, वो समझ पाता है। कई जगह घर में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होगी या कोई भी चीज़ खराब हो जाएगा लाइक वॉशिंग मशीन, रेडियो, तो हमें मैकेनिक के पास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो खुद ठीक करता है क्योंकि उस बच्चे में डोमिनेंट कंक्रीट इंटेलिजेंस और हम कह सकते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस है। इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को चांसेस होते हैं इंजीनियर्स बनने के, मैकेनिक बनने के, आर्किटेक्ट बनने के। नंबर 3, सोशल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, understand and perform in social relationships. It also means an ability to understand your own self and others' actions. Social intelligence is learned and developed from experience with people and learning from success and failures in social settings. It is usually found in politicians, counselors, and salespersons. Dear students, third type of intelligence discussed by Throndike, that is known as social intelligence. What is social intelligence? How social intelligence is different from abstract intelligence vis-a-vis mechanical intelligence. Dear students, social intelligence is that ability, ये वो ability है जो help हमें करती है how to build the relationship with others. हम किस तरीके से रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं दूसरों के साथ। दिस इज नोन एज सोशल इंटेलिजेंस। यानी कि विदाउट द सोशल इंटेलिजेंस हम सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना है। इट मीन्स वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन्स ओन सेल्फ। यानी कि ये वो इंटेलिजेंस है जिससे सिर्फ हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं बल्कि ये इंटेलिजेंस हमें अपने आप को
समझने के लिए लगती है। यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिसमें डोमिनेंट सोशल इंटेलिजेंस होती है वो खुद को भी समझ पाते हैं और दूसरों को भी समझ पाते हैं। तो नटशल में हम कह सकते हैं इट इज दैट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ विज़ टू द अदर्स। ये ज़रूरी नहीं है जिनमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी उनमें सोशल इंटेलिजेंस भी होगी। जैसे कि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन में स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस थी। वो क्रिएटिव इंडिविजुअल था, या हम कह सकते हैं क्रिएटिव साइंटिस्ट था, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। एटॉमिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। डिस्पाइट हैविंग डोमिनेंट एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, आइंस्टाइन लैकिंग द सोशल इंटेलिजेंस। उसमें बहुत कम सोशल इंटेलिजेंस थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर आइंस्टाइन that to develop the social relationships with others, keeping in view the research reports. Various research reports depict करते हैं कि आइंस्टाइन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाईली डेवलप्ड थी, लेकिन उसमें सोशल इंटेलिजेंस न होने के बराबर थी। इसीलिए ज़रूरी नहीं है जिस इंडिविजुअल में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी या मैकेनिकल इंटेलिजेंस होगी उसमें सोशल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। Social intelligence is commonly found among salespersons, politicians, vis-a-vis counselors. इन तीन इंडिविजुअल्स के पास कॉमनली सोशल इंटेलिजेंस होती है। इसीलिए वो पर्सन जिसमें सोशल इंटेलिजेंस होती है, अगर वो पॉलिटिक्स के फील्ड में जाएंगे तो वो वहाँ पर बहुत अर्न नेम एंड फेम कर पाते हैं। They know how to earn the vote bank, keeping in view his or her social intelligence. क्योंकि social intelligence is that intelligence which will help us to build the social relationships with the people, to understand the nature of others, and also how to accommodate with their nature. उनके साथ किस तरीके से हमें accommodate करना पड़ता है। इसीलिए जहाँ पर भी politicians जाते हैं, किसी स्ट्रेंज सोसाइटी में जाते हैं और लोगों को वहाँ पर लगता है कि जैसे कि ये हमें सदियों से जानते हैं, ये हमारे लिए पराये नहीं है या ये हमारे लिए पराया नहीं है। ये सोशल इंटेलिजेंस की वजह से है, क्योंकि पॉलिटिशियंस में देखी गई है एज पर द रिसर्च आर कंसर्न दे हैव डोमिनेंट सोशल इंटेलिजेंस। या सेल्स पर्सन्स, सेल्स पर्सन्स वो पर्सन्स है हु सेल द प्रोडक्ट्स, लेकिन एक इंडिविजुअल सोशल इंटेलिजेंस के बगैर प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकता है। सेल्समैन बनने के लिए एक इंडिविजुअल के पास पहले सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि सेल्समैन को डील करना पड़ता है या सेल्स वुमेन को डील करना पड़ता है विद द कस्टमर्स, विद द कॉमन मास। मार्केट कमाने के लिए उसे एक टाई, एक रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ती है विद द पीपल। दोज पीपल हु पॉजेसेस सोशल इंटेलिजेंस, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी पाई जाती है। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज दैट इंटेलिजेंस विच हेल्प अस टू फील द इमोशंस ऑफ अदर्स। इसीलिए जो सोशली इंटेलिजेंट होते हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, सोशल इंटेलिजेंस को आल्सो पीपल स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इस इंटेलिजेंस से हम दूसरों को समझ पाते हैं। एंड इट हेल्प्स हाउ टू डेवलप द रिलेशनशिप विद अदर्स। बाय एंड लार्ज इट इज फाउंड अमंग द काउंसलर्स। एज वी नो दैट काउंसलिंग सिंपली मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसली, या काउंसली को हम क्लाइंट भी कहते हैं। और तब तक एक काउंसलर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, वो काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर एक काउंसलर के पास सोशल इंटेलिजेंस नहीं होगी। बिकॉज सोशल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू द काउंसलर हाउ टू बिल्ड द रेपो बिल्डिंग,
Rapport building simply means to develop the relationships with the counselee or client. क्योंकि counseling में rapport building is primary step. Without the rapport building, we cannot break the resistance of the client. हम client की resistance को break नहीं कर सकते हैं. अगर हमने client को open नहीं करवाया, जो वो प्रॉब्लम फील करता है, तो ट्रीटमेंट सर्विस हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ट्रीटमेंट देने के लिए पहले हमें डायग्नोस प्रॉब्लम करनी है, लेकिन प्रॉब्लम हम तब तक डायग्नोस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप ओपन एक्सप्रेस नहीं करवाओगे क्लाइंट से कि कौन सी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे इमर्ज हो चुकी है. इसीलिए कीपिंग इन व्यू द प्रोफेशन ऑफ काउंसलिंग, काउंसलर के पास सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स डेवलप कर ले क्लाइंट के साथ और क्लाइंट को काउंसलर पे ट्रस्ट आ जाए. एंड देन इजीली क्लाइंट कैन एक्सप्रेस one's own feelings, can share the joys and sorrows with the counselor. और जिन इंडिविजुअल्स में सोशल इंटेलिजेंस लैक होती है या इमोशनल इंटेलिजेंस आर लैकिंग, तो उन्हें कम चांसेस होते हैं पॉलिटिशियन बनने के, काउंसलर बनने के, साइकोलॉजिस्ट्स बनने के, बाय एंड लार्ज सेल्स पर्सन्स बनने के. Dear student, psychologists are giving due importance to the aptitude tests because on the basis of aptitude tests we can understand the aptitude of an individual. और हर एक इंडिविजुअल को हम अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से फील्ड देंगे. अगर हम ब्लाइंडली एक इंडिविजुअल को किसी फील्ड में डालेंगे, it means the individual has having least chances to become successful in that field. This was all about the today's lecture. Dear students, next lecture में हम discuss करेंगे another important theory of intelligence that is known as multiple theory of intelligence, propounded by cognitive psychologist or developmental psychologist, namely हावर्ड गॉर्डनर. हावर्ड गॉर्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एस्पेशली विद द स्पेशल रेफरेंस टू 8 टाइप्स. हावर्ड गॉर्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, लाइक विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, इसे पिक्चर स्मार्ट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस या हम कह सकते हैं वर्ड स्मार्ट इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर और रीजनिंग स्मार्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पीपल स्मार्ट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट, नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट. दीज आर डिफरेंट 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. If you really enjoyed my lectures, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.